Afternoon, everybody. I'm Sayukta, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some time in our lives. Urticaria is characterized by a round rash on the skin that itch a lot. It may be due to certain chemicals in food items, allergy to certain medications, insect stings, sunlight, and sometimes the causes of an unknown. As per study published in Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidences are higher in older age group. Urticaria is characterized as acute and chronic, but the most important part is not to ignore it. And doing self-medication can worsen these symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early remission. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its type, how we can prevent it, the kind of test required for its diagnosis, the right treatment, and management approach for an early relief. So today we have with us Dr. Prakash Agrawal, MBBS, MD, dermatologist, and venerologist, who has overall 8 years of experience in this field, and currently he is working at Mehi Skin Clinic, Shiliguri. A very warm welcome to you, Dr. Prakash. It's a pleasure to have you with us. And today, as we are going to discuss about a very important topic, which is the management of urticarial rash, we would first like to welcome you to our session. Thank you. Thank you, and good afternoon to everyone. Right. So, Dr. Prakash, urticaria is quite common, as I have already stated initially, right? लेकिन एक बहुत आम सवाल जो लोगों को होता है, urticaria है क्या? What is urticaria? Actually, urticaria, if we see in a simple way, it's like allergic reaction to any cause. Sometimes they कभी known cause होते, कभी unknown cause होते. Known cause like food allergy, like some drug allergy, some insects allergy, or due to any infections or due to any internal problems could be. And sometimes it's due to idiopathic, means there is no any cause. In urticaria, usually patients complain with the hives like raised itchy lesions usually comes. It can be small pinpoint or it can be large lumps like lesion, and it can be severe also. We call it anaphylactic reaction. That is the severe form. There the patient has to go to the hospitals. But maximum cases the patient usually come with the small pinpoint red lesions to large big lesions, and usually it subsides within 24 hours. So this is the definition of urticaria Right. basically. How does it look like, doctor? Because almost all the skin infections or skin allergies itch a lot. They appear as rashes. So for a layman, कैसे हम समझे कि urticaria कैसा दिखता है? अर्टिकेरिया में जैसे पेशेंट जो है, जैसे उनको फील होगा कि लाल लाल धब्बे धब्बे जैसे बॉडी में आ गए एकाएक सडनली। हाँ, और इच करेंगे वो, और क्या होगा कि वो ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। मतलब जैसे पहले एक दो निकले, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे बॉडी में, फेस में, पैरों में इस तरीके से आ जाते हैं। और उनको बहुत बार तो पेशेंट को फील पता भी चल जाता है, जैसे कुछ वो बहुत दिन से ऐसे कोई खाना खाने के बाद, जैसे मान लो कुछ इन्होंने बहुत दिन से नहीं खाया था, जैसे एग्जांपल मान लो कोई सी फूड्स खाया, मान लो कोई प्रॉन ही खाया उसने, या कोई सेलफिश खाया, या कोई एग खाया सडनली, तो उनको एक ईच होने लगेगा विद। और ये जो ईच होती है यूजुअली एक्यूट, अर्टिकेरिया दो टाइप की होती है, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट बोलते हैं जब ये विद इन 6 वीक्स होता है, क्रॉनिक जब मोर देन 6 वीक्स या मंथ्स 2 इयर्स लास्ट करता है। तो जो एक्यूट होते हैं उसमें पेशेंट यूजुअली विद इन 1 आवर जैसे कुछ भी खाया या कोई मेडिसिन खाया, पेन किलर्स खाए, बस वो ईच होते ही वो उनको फील होगा, तो वो बॉडी में पूरे धब्बे धब्बे लाल लाल जैसे होने लगेंगे। तो ओके, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हमें हो रहा है that is urticaria, and in case you have the signs, please go and consult a qualified dermatologist. Now the problem is, doctor, in our society, the normal tradition that we follow is that in case we see anything wrong, we'll go to the chemist shop,
गेट एन एंटी एलर्जन, क्योंकि हम सबको पता है कि एलर्जी है तो एक एंटी एलर्जन ले लिया जा सकता है। मैं नाम नहीं लूंगी, बट देन वी ऑल नो सो मेनी एंटी एलर्जन्स बाय देयर नेम। एक दो दिन आराम मिल जाता है और हमें लगता है हम ठीक हो गए। फिर जब हमें इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, अगेन विल गो टू द केमिस्ट शॉप। इट्स ओनली व्हेन द कंडीशन गोes आउट ऑफ कंट्रोल वी go and consult a qualified dermat like you. What's your stand on this, for those who normally go for over the counter medication, etc.? Actually, if like when a patient is residing in a remote area, there is no any facility of the doctors, so and suddenly they can't go to the far place, तो उस समय वो जैसे केमिस्ट में जाके नॉर्मल सेट्रिजिन टैबलेट आती है, सेट्रिजिन, वो ले सकती हैं, और साथ में जैसे कोई भी एक सूदिंग कैलामिन लोशन लगा सकते हैं। यदि उनका मान लो एक टैबलेट सिंगल, कोई बहुत पेशेंट आते हैं कि वो लोग बताते हैं कि मैंने एक गोली खाई, उससे मेरा पूरा आराम हो गया था। इफ सपोज मान लो उनको सिंगल टैबलेट से आराम हो जाता है, तो हम लोग ये नहीं बोलते कि आज हुआ है और तुरंत आप दौड़ के हमारे पास आ जाओ। यदि हो रहा है, स्मॉल है, बेरेबल सिम्टम्स है, तो आप एंटी एलर्जी मेडिसिन लेके कैलामिन लगा के आप देख सकते हो। यदि आपके पास सुविधा है, आप जा सकते हो नियर बाय डॉक्टर के पास, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो टू द डॉक्टर। जब आपके पास नहीं है तो आप एक बार कम से कम थोड़ी देर रिलीफ के लिए आप सेट्रिजिन लेके देख सकते हो। बिल्कुल, तो ये डेफिनेटली किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है या बार बार हो रही है तो डेफिनेटली हमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक और चीज जो हम बहुत आमतौर पे करते हैं वो है होम रेमेडी ट्राई करना, या दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछना जिनको अर्टिकेरिया हो चुका है। कई बार तो हम उनके प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर चले जाते हैं और वो दवाइयाँ खुद पे ट्राई करने लगते हैं, या फिर होम रेमेडीज करते हैं, कुछ अप्लाई कर लेते हैं ताकि वो जलन ना हो, वो इचिंग ना हो। कितने हद तक ये करना ठीक है और क्या इसका कोई नुकसान हो सकता है? कैन इट बी हार्मफुल टू अस? देखिए, यदि मान लीजिए आपके बॉडी मतलब आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जैसे आप यंग हेल्दी हो, आपके में कोई किडनी के प्रॉब्लम, क्योंकि जितनी भी एंटी एलर्जी मेडिसिन होती है, या तो वो लिवर को अफेक्ट करती है या किडनी को अफेक्ट करती है। तो आप यदि ओल्ड एज नहीं हो, यंग हो, हेल्दी हो, आपको पता है आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, तो आप मेडिसिन ले सकते हो। आपके पास अभी फैसिलिटीज नहीं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या डिस्टेंस पे हो, तो आप मेडिसिन ले सकते हो। रहा होम रेमेडी में यूजली पेशेंट लगाते हैं घर में, जैसे एलोवेरा लगा लेते हैं या कपूर लगा लेते हैं। तो बहुत हद तक तो ये काम मतलब किसी पेशेंट में करता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं है। उससे ज्यादा इफेक्टिव जो कैलामिन लोशन होती है वो ज्यादा असर करती है एज कम्पेयर टू दी कपूर या लोग लगाते हैं। और कभी-कभी तो उल्टा और रिएक्शन भी हो जाती है। कभी-कभी जैसे मान लो आपने लोशन लगा लिया और वो और ओवर रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि लोग नॉर्मली क्या होता है, टेंडेंसी होती है लोग लगा के मसाज करने लगते हैं, जबकि हम लोग अर्टिकेरिया में मना करते हैं मसलने रगड़ने के लिए। तो उससे क्या होता है ना, रगड़ाहट से वो और बढ़ जाता है, वो ट्रिगर का काम करता है। तो इसलिए जेंटली लगाना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग जो मेडिसिन भी देते हैं पेशेंट को, हम लोग बोलते हैं जेंटली लगाने के लिए, ना कि इसको रब करने के लिए। तो वो सब चीज यदि नहीं पता है तो फिर वो पेशेंट वहां मिस्टेक कर जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अर्टिकेरिया को लेके अवेयरनेस हो, और इसीलिए आज ये हम सेशन भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं इनिशियल रिलीफ के लिए, तो कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ होम रेमेडी भी अगर ट्राई कर सकते हैं। और इनिशियली हमें डॉक्टर प्रकाश ने बोला भी कि कई बार एलर्जी के चलते भी होता है, तो हो सकता है हम जो लगा रहे हैं उसी से हम एलर्जिक हो, या फिर उसको अगर हम रगड़ देंगे तो वो हमारी दिक्कत को और बढ़ा सकता है। So having the right information from the right source is very important. That it's very important to go and visit a qualified doctor in case you have these symptoms or signs. Now, doctor, is urticaria a serious disease? क्या ये life threatening हो सकता है या बहुत कितना गंभीर ये है? देखिए, यदि ये सिर्फ स्किन तक इन्वॉल्व्ड है तब तो ठीक है, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो। लेकिन यदि म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे मान लो लिप स्वेलिंग हो जाए, आई स्वेलिंग हो जाए, या आपके थ्रोट में स्वेलिंग हो जाए, या आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए, तब तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर मतलब ये हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि वो एनाफाइलेटिक रिएक्शन और वो सीवियर मतलब इनफैक्ट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।
तो ऐसे केसेस बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यदि इस टाइप के थोड़ी भी सिम्पटम्स लगे आपको कि आपको सांस फूल रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपके मुंह फूल रहे हैं, तो आप बिल्कुल इमीडिएटली मतलब हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ। बिल्कुल, और इसीलिए फिर से हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है अर्टिकेरिया को लेके, और इसीलिए अगर अर्टिकेरिया है, अर्टिकेरियल रैशेस हो रहे हैं, तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए ताकि आपको ये पता रहे, आपके संज्ञान में ये रहे कि कितना सीरियस वो हो सकता है। और फैमिली मेंबर्स भी अगर इस तरह की कोई सिम्टम साइंस देखते हैं, बी वेरी केयरफुल एंड इमीडिएटली टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। नाउ डॉक्टर, आपने बताया कि अक्यूट और क्रॉनिक, ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें अर्टिकेरिया को डिवाइड किया जा सकता है। 6 वीक अगर है अर्टिकेरिया तो वो अक्यूट होता है, उससे ज्यादा लंबे समय तक है तो वो क्रॉनिक हो जाता है। दोनों के क्या रीजंस अलग अलग होते हैं, क्या कॉजेज अलग अलग होते हैं, और खास तौर पे अगर हम क्रॉनिक अर्टिकेरिया की बात करें, उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? देखिए, एक्यूट अर्टिकेरिया क्या है ना कि जो डेफिनेशन है उसकी कि विद इन 6 वीक्स यदि वो हो रहा है और उसकी उससे लंबी इसकी हिस्ट्री नहीं है, तो उसको हम लोग एक्यूट में रखते हैं। वही यदि आपकी अर्टिकेरिया बार-बार रिपीट हो रही है, आप मतलब मोर देन 6 वीक्स टू 6 मंथ, 1 ईयर, तो उसको क्रॉनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। एक्यूट अर्टिकेरिया में यूजुअली कॉजेस मतलब पता चल जाते हैं, जैसे ज्यादातर एक्यूट अर्टिकेरिया फूड से होती है, कोई इन्फेक्शन से हो सकती है, कोई मेडिसिन से हो सकती है, कोई इंसेक्ट्स बाइट्स हो गए उससे हो सकती है। और जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है उसको आप इस तरीके से बांट सकते हो कि 50% इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक मतलब कोई कॉज नहीं होता। इनफैक्ट जब हम लोग ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, पेशेंट से भी पूछते हैं, तो वो भी नहीं अपना ट्रिगर बता पाते हैं कि मुझे क्यों हो रहा है। हम लोग बहुत सारे लैब इन्वेस्टिगेशन, ड्रग ये एलर्जी टेस्ट भी कराते हैं, वो भी सारा नॉर्मल आता है। तो इसको एक अलग में रखते हैं 50%, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक। और आपको मतलब अजीब लगेगा कि यही सबसे ज्यादा कॉमन है। मतलब आप देखो कि बहुत पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं कि हमने सारा टेस्ट कराया, सारे बहुत डॉक्टर को दिखाया, बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है, कॉज भी पता नहीं चल रहा है। तो बेसिकली ये इडियोपैथिक है। मेडिकल साइंस में बहुत सारी बीमारी है जिनका इडियोपैथिक कॉज होता है, मतलब अभी तक उसका कॉज पता नहीं चल पाता है। कुछ में होता है क्रॉनिक अर्टिकेरिया, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून, तो वो जिसमें जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है या और भी कोई ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो उससे ये चीजें हो सकती है। और इसमें और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे सोलर अर्टिकेरिया होती है जो कि क्रॉनिक के अंदर रखते हैं, जैसे धूप से एलर्जी हो गई। किसी को एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया होती है, वो पानी से, कोल्ड अर्टिकेरिया ठंड से, प्रेशर अर्टिकेरिया कोई चीज टाइट पहनने से। तो इस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन है। तो एक्यूट के कॉजेस कुछ अलग है और क्रॉनिक के जो कॉजेस है वो अलग है। राइट। जिस तरह से आपने बाइफिकेट किया, और एक तो है कि क्रॉनिक अर्टिकेरिया में ज्यादातर केसेस में तो पता ही नहीं चलता कि कॉज क्या है, लेकिन दूसरा जहां पता चलता है तो वहां क्योंकि मोस्टली एलर्जी से होता है या जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर है उन्हें हम पहले अवॉइड कर सकते हैं, राइट डॉक्टर? अगर फूड एलर्जी है तो वो फूड्स हम अवॉइड कर सकते हैं, किसी स्टिंग से है, सनलाइट से है, प्रेशर से है, जो भी आपने बताए हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो क्रॉनिक अर्टिकेरिया अगर है और उसमें भी अगर रीजन हमको नहीं पता है कि क्यों हो रहा है, हाउ डू यू ट्रीट द पेशेंट? ट्रीट क्या करते हैं, जो बेसिक प्रिकॉशन है वो तो पेशेंट को हम लोग बोलते ही हैं फॉलो करने के लिए। जैसे उनको जो कॉमन फूड एलर्जी होती है जिन जिन चीजों से, जैसे एग हो गई, फिश हो गई या सी फूड्स हो गए, जैसे ब्रिंजल हो गए, टोमेटो हो गए, नट्स हो गए, मशरूम हो गए, तो ये बेसिक चीज हम मना करते हैं कि बड़ा इसको आप काफी दिनों तक बंद रखो। साथ ही साथ कोई पेन किलर्स ना लो, कोई भी तरह के एंटीबायोटिक्स आप लेने के पहले कंसल्ट कर लो और कम से कम मेडिकेशन लो। और हम लोग जो एंटी एलर्जी मेडिसिन देते हैं उसको हम लोग एक प्रॉपर वे में टेपर करते हैं। जैसे बहुत पेशेंट क्या करते हैं, आज एलर्जी हुआ, एलर्जी के बाद दवा खाते हैं, और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग को पहले से ही मेडिकेशन में रखना पड़ता है। हम एलर्जी को मौका नहीं दे ट्रिगर होने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि आपको ऐसे मेंटेनेंस मेडिसिन खाना पड़ेगा कि जैसे आपको ना भी एलर्जी हो रही है तो भी आप उसको एक मतलब रेगुलर डोज के हिसाब से खाते जाओ। फिर उसको हम लोग धीरे धीरे करके टेपर करते जाते हैं। जब वो हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का कितना ईचिंग है सिम्टम्स है, और हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जैसे सीरम आईजी लेवल, वो देखते हैं वो कितना हाई है।
उसके हिसाब से हम लोग टेपर करते हैं। जैसे कभी हम लोग कोई पेशेंट में 10-10 दिन में टेपर करते हैं मेडिसिन को, किसी में हम लोग मंथ में एक बार टेपर करते हैं, मंथ में। ऐसे करते धीरे-धीरे टेपर करते-करते एक समय आता है कि ये मतलब जैसे एक लिखी हुई है कि जैसे 6 मंथ आते-आते मोर देन 50% लोगों का ठीक हो जाता है। 9 मंथ्स आते-आते 80% लोगों का ठीक हो जाता है। 5 to 10% पेशेंट ही जो होते हैं, जो साल भर ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं होते। तो ये चीज़ है। राइट। तो कई बार जिस तरह से हम देखते हैं डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं वो थ्रू आउट मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उसी तरह से क्रोनिक अर्टिकेरिया में भी आप कह रहे हैं कि हमको रेगुलर बेसिस पे मेडिकेशन लेना पड़ता है कई केसेस में। एक बहुत आम सा सवाल होता है क्रोनिक अर्टिकेरिया के पेशेंट्स का, वो ये कि क्या परमानेंटली ठीक होगा? विल इट एवर गो अवे फॉरएवर? देखिए एक्चुअली इसका जो मतलब इंसिडेंस है लाइफ में हर किसी को एलर्जी होगा कभी ना कभी। और इसके जो इंसिडेंस है मतलब समझ लो हर 100 में 20 लोगों को एलर्जी होती है। ठीक है। अब यदि आपका यदि कोई ट्रिगर है एकदम एकदम आपको पता है कि ये चीज मेरे से ये मेरे को एलर्जी करती है, उसको आप थ्रू आउट द लाइफ अवॉइड करो। सिंपल सा है। राइट। तो तब आपको नहीं होगी। और कुछ में यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसमें बस यही है कि आपको रेगुलर एक कोर्स करना पड़ेगा मेडिसिन का। फिर उसके बाद आप छोड़ दो, बंद कर दो मेडिसिन। फिर आप फ्यूचर में यदि फिर से होती है, तो आप फिर से डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। इसके लिए हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं कि अपना आप एक डायरी बनाओ, फूड डायरी और ड्रग डायरी। फूड डायरी जैसे आप मान लो कोई भी नया खाना ऐड कर रहे हो या खा रहे हो, उसको थोड़ा ध्यान रखो, उसको नोट डाउन करके रखो, ताकि जब आपको एलर्जी हो तो आप बता सको कि मैंने ये खाया था। और एक ड्रग डायरी आजकल बहुत होती है, ओवर द काउंटर गए कुछ भी एंटीबायोटिक्स खरीद के ले आए, पेन किलर खरीद के ले राइट। आए, पता ही नहीं होता है क्योंकि वो काट के देते हैं पत्ते। उनको पता ही नहीं होता कि क्या कंपोजिशन था नहीं था। तो जब भी वो मेडिसिन खरीदे बाहर से, तो वो उनसे कंपोजिशन लिखा ले कि कौन सा कंपोजिशन है। तो ऐसे करने से वो पता कर पाएंगे और डॉक्टर के लिए भी हेल्प रहेगा कि वो भी आपको बता पाएंगे हाँ आपको इस मेडिसिन से एलर्जी है। नहीं तो बहुत बार पेशेंट बता ही नहीं पाते हैं कि मैंने क्या दवा खाई। राइट। अच्छा, ये भी हो सकता है क्या डॉक्टर कि मान लीजिए मैं अब तक एग खा रही थी और मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, और अचानक अब ऐसा मैं पैटर्न देख रही हूँ, क्योंकि आपने कहा ना कि एक डायरी हम मेंटेन कर सकते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमें एक पैटर्न समझने में मदद मिल सकती है। तो अब मैं देख रही हूँ कि मैं पिछले 1-1.5 महीने से जब जब एग खा रही हूँ तब तक मुझे अर्टिकेरियल रैशेस हो रहे हैं, तो कई बार क्या ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम एलर्जिक ना हो और अचानक से हो जाए? ये होता है तो बहुत सारी चीजें हैं। आज मान लो कोई भी डिजीज होती है, ऐसा तो है नहीं कि सब बाय बर्थ ही होती है। आज मान लो बहुत पेशेंट डायबिटीज होते हैं, किसी को प्रेशर होता है, तो नमक तो वो पहले से खाते रहते हैं, मीठा तो वो तो भी खाते रहते हैं। तो ये बॉडी हमारा चेंज हो ही सकता है। तो विद द टाइम चेंज होता है। तो आप 5 साल पहले नहीं थे एलर्जिक, अब हो गए। तो इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। मेडिकल ऐसे बहुत सारी डिजीज है जो आज आपको नहीं है, कल को हो सकती है। डॉक्टर, अगर अर्टिकेरिया का इलाज नहीं कराया जाए, अनट्रीटेड उसे रख दिया जाए, तो क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, यदि आप एलर्जी का नहीं कराएँगे तो ये हो सकता है डे बाय डे और ज़्यादा आपको एग्रावेट होता चला जाए। प्लस क्या होगा कि जो सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम है, जैसे आप हमेशा इच करते रहोगे तो आपकी स्किन पूरी खराब होने लगेगी, रफ होने लगेगी, स्किन में दाग आने लगेंगे, स्किन आपकी मोटी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा है। बहुत बार इच करते-करते पेशेंट घाव कर लेते हैं, वहाँ पे बॉयल्स जैसा हो जाता है। तो हम्म। उसको फिर अलग से ट्रीट करना पड़ता है। तो ये तो बेसिक प्रॉब्लम है। और कभी-कभी क्या होती है जैसे आपको एलर्जी है, आपने नहीं कराया, लेकिन आपको क्या पता कि अभी मैं आपको बताता हूँ, कुछ ये एलर्जी सिर्फ़ खाली बाहर प्रॉब्लम से नहीं, ये कुछ इंटरनल प्रॉब्लम से मान लो आपको जॉन्डिस है, जॉन्डिस में भी इचिंग होती है। यदि आपको मान लो किडनी में प्रॉब्लम है, आपकी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़े हुए हैं, तो वो एक टाइप का आपका ये है, इंडिकेटर है। तो आप यदि नहीं गए डॉक्टर के पास और आपको पता चला आपका अंदर में जॉन्डिस बढ़ रहा है या आपका हाँ। लिवर एंजाइम्स बढ़ गया, आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, आप कैसे पता करोगे? राइट। तो इसलिए कोई भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। आज के डे में मतलब सोशल मीडिया इतना बड़ा है, आजकल इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, हर जगह आपको डॉक्टर मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो समय नहीं है रिस्क लेने का, कुछ भी छोटा-मोटा हो, आप एक जो जानकार है, एक्सपर्ट है, उनसे कंसल्ट करो,
तो वो आपके लिए हमेशा सेफ साइड रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, और वाकई में हो सकता है कि कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हो और इसलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले ले या कुछ देर के रिलीफ के लिए उस पे कोई लोशन लगा भी ले, तो हम कभी डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। ना तो केमिस्ट शॉप वाला जो फार्मासिस्ट है वो हमें डायग्नोस करके देगा, ना ही होम रेमेडीज हमें कुछ बताने वाली है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डायग्नोस हो, और उसके लिए हमें एक डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। चूंकि हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं डॉक्टर, क्या कोई पेशेंट जब आपके पास आता है तो आप कोई टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, और जस्ट बाय क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन यू कैन से कि हाँ ये अर्टिकेरिया है और ये कितना डीप है, या किस लिए हुआ होगा, क्या वजह रही होंगी, या कोई बेसिक टेस्ट भी होते हैं? देखिए एक्चुअली क्या ना, अर्टिकेरिया मैक्सिमम केस में क्लिनिकली ही डायग्नोस्ड होता है। लेकिन हम्म। यदि मान लो पेशेंट के सिम्टम्स बहुत शॉर्ट टर्म है, सिर्फ 1-2 दिन का हुआ है और यंग पेशेंट्स है, तब तो फिर हम लोग यूजुअली लैब टेस्ट में नहीं जाते। लेकिन यदि मान लो पेशेंट्स को क्रॉनिकली बार-बार रिलैप्स कर रहा है, पेशेंट्स की एज भी ज़्यादा है, उनको और भी कोई कोमॉर्बिडिटीज लाइक शुगर, प्रेशर है, तो डेफिनिटली हम लोग रूटीन ब्लड टेस्ट जो होता है वो कराते हैं। साथ ही साथ सीरम आईजी लेवल, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट्स, एलर्जी टेस्ट जो भी होती हैं रिलेटेड, जो मुझे हम लोग को लगता है, तो वो कराना पड़ता है। मैं आपको एक चीज और ऐड करता हूँ, मैं जो आपको कॉजेस बता रहा था, उसमें हम्म। एक कॉज है स्किन मैलिग्नेंसी। एक कंडीशन होती है स्किन मैलिग्नेंसी, स्किन में हम्म। भी कैंसर होते हैं। कुछ स्किन मैलिग्नेंसी में भी ना ईचिंग बहुत होती है। एज यदि मान लो कोई बहुत एजेड पेशेंट्स है, बहुत इचिंग कर रहा है, सारा ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, सब नेगेटिव है, लेकिन बाद में जब हम स्किन बायोप्सी करते हैं या हम उनका कोई कैंसर मार्कर टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है उनको स्किन लिम्फोमा था या स्किन कैंसर था। तो ये ये जो एलर्जी है, ये समझ लो मतलब मिनिमम टू ये मैक्सिमम तक जा सकता है, और आपको कुछ भी आप किस रेंज में भी आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत शॉर्ट टर्म है तो आप काम चला सकते हो, लेकिन यदि आपको हम्म। बार-बार हो रहा है तो बिल्कुल। घर में बैठने से अच्छा आप एक बार आप टेस्ट करा लो। आप श्योर हो जाओ कि नहीं मेरा बॉडी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये आप देख सकते हो। और बिल्कुल। और टेस्ट जब हमें जी हाँ, हाँ। जी, जी आप कंप्लीट कर लो। जब जी। हमें आराम मिल सकता है, जब ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स डर्मैट्स अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं, rather than wasting our time, our energy, our money for over the counter medication or home remedies etc. इन्फ्लुएंसर्स से भी आजकल लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि वो भी एक प्रोडक्ट एंडोर्स ही कर रहे हैं। मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होना है। गो टू द राइट पर्सन, गो टू एन एक्सपर्ट which is a qualified dermatologist in this case. Don't fall for quacks or over the counter medication. ये बहुत harmful हो सकता है। क्यों ना हम पहले ही पता कर लें और पहले ही आराम मिल जाए। और ऐसे भी डॉक्टर से क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत हैम्पर होती ही है, क्योंकि कंटिन्यूअसली इचिंग हम कर रहे हैं, और बहुत स्ट्रेस में एक इंसान होता है जो अर्टिकेरियल रैशेस जैसे होते हैं, या बार बार अर्टिकेरियल रैशेस होते हैं। तो ये भी मैं जानना चाहूंगी, कई लोग ऐसे होते हैं जो अर्टिकेरिया से सफर कर रहे हैं, दे स्टॉप सोशलाइजिंग, दे स्टॉप गोइंग टू पब्लिक फंक्शंस एक्सेट्रा। वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली इचिंग। और ऐसे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में तो वो रहते ही हैं। तो क्या ये स्ट्रेस एग्रीवेट कर सकता है अर्टिकेरिया को, या स्ट्रेस की वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है डॉक्टर? बिल्कुल, अभी आज के डे में स्ट्रेस जो है एक कोर फैक्टर हो गया। आप जितनी भी डिजीज उठा लो, आप शुगर उठा लो, प्रेशर उठा लो, कुछ भी है, ये स्ट्रेस ये बोथ वे में काम करता है। स्ट्रेस से आपको एलर्जी हो सकती है आगे चल के, या आप एलर्जी के कारण स्ट्रेस में जा सकते हो। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, इतनी ज्यादा इचिंग होती है, रात में सो नहीं पाते। आप मुझे बताओ, यदि कोई पेशेंट 15-15 दिन तक सोए नहीं, महीनों नहीं सोए, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस में जाएगा। और यदि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, तो वो आगे चल के डिप्रेशन में भी जा सकता है। और बहुत सारी मेडिसिन होती है, जब जो एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन होती है, पेशेंट ले रहे हैं ऑलरेडी, तो उससे भी क्या-क्या कभी-कभी एलर्जी होने लगती है। बहुत सारी एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन है, या एंटी जो नर्व में मेडिसिन देती हैं, एंटी न्यूरेटिक मेडिसिन्स है, तो उस सबों से भी एलर्जी होती है। तो दोनों वे से ये हो सकता है। तो
ये तो है कि मतलब स्ट्रेस से ट्रिगर होता है ये एलर्जी। बिल्कुल। और डॉक्टर, जैसा आपने भी कहा कि कई बार रात रात भर नींद नहीं आते, 15-15 दिन नहीं सोते, कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कंप्लेन करते हैं दैट देयर अर्टिकेरिया गेट्स वर्स ड्यूरिंग नाइट। तो क्यों ऐसा होता है कि रात को बहुत ज्यादा इच होता है या बहुत ज्यादा अर्टिकेरियल रैशेस उनको महसूस होते हैं? एक्चुअली इसके पीछे दो मतलब बहुत सारे रीजन है। एक तो क्या है कि रात में जैसे आप दिन भर काम में आपका फोकस रहता है, तो हम्म। आप मतलब उसमें बिजी रहते हो, तो आपका माइंड नहीं जाता है। लेकिन जब आप मतलब काम आपका नहीं है, आप शांत हो गए, तो फिर क्या दिमाग जाता है आपके बॉडी पे इचिंग में। दूसरी बात क्या होती है ना, जब हम मॉर्निंग में रहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो स्ट्रेस को टॉलरेंस का लेवल है या इच टॉलरेंस लेवल, वो हाई होता है हमारा। हम उसको टॉलरेट कर पाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में जो स्टेरॉइड होते हैं वो। लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होता है, हमारे हार्मोन्स धीरे धीरे घटने लगते हैं। ये सभी के बॉडी में होता है। तो जैसे आपके हार्मोन्स घटे, आपका स्टेरॉइड लेवल घटा बॉडी में, तो आपकी जो टॉलरेंस लेवल है वो भी घट जाती है। तो उस कारण से क्या होती है, वो इच आपको ज्यादा फील होने लगती है। राइट। ये भी कंप्लेन होती है अर्टिकेरिया पेशेंट्स की कि वो बहुत फटीग फील कर रहे हैं या बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत थकान हो रही है, तो ये भी कैसी वजह से होती है? देखो ये चीज दोनों वे से होता है। कुछ मेडिसिन भी होती है एंटी एलर्जिक, जिससे थोड़ी नींद आती है, तो वो पूछना पड़ता है कि भाई आप कोई मेडिसिन खा रहे हो। यदि मेडिसिन खा रहे हैं तो सेडेटिव मेडिसिन खाने से ये होता है कि आपको दिन भर लिथार्जी, नींद जैसा लगेगा। और दूसरा भी होता है, यदि वो मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, ऑलरेडी एलर्जी से परेशान है, तो यदि उनका नींद मतलब रात का नींद ठीक से नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप एक दिन रात में नहीं सोओगे तो नेक्स्ट दिन आपको तो अनईजी फील होगा और आप लिथार्जिक फील करोगे। हम्म। हमारी एक पेशेंट है मिली अग्रवाल। मिली के बच्चे को अर्टिकेरिया है और वो पूछ रही है क्या समय के साथ ही अर्टिकेरिया ठीक हो जाएगा, वो इससे बाहर निकल आएगा, या फिर ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है? पहला तो कि जैसे उनके बच्चों को एलर्जी कब से हो रही है और एज क्या है वो मैटर करता है। बच्चों में जो एलर्जी होती है वो ज्यादातर ड्राइनेस से भी होती है। तो यदि उनकी स्किन ड्राई है तो उस कारण से भी होती है। और कुछ में देखा गया है कि जैसे चॉकलेट से, आइसक्रीम से भी होती है, क्योंकि तो कोका एलर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो और जैसे बहुत बार बटर से, चीज से, तो पहले या तो उनकी फूड हैबिट्स को आप चेंज करके देखो थोड़े दिन। फूड हैबिट चेंज करने से मान लो यदि उसका ठीक हो जाता है तो और तब तो ठीक है। या ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो मॉइस्चराइजर, प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन लगाने से होते हैं। और हम लोग ने देखा ज्यादातर पीडियाट्रिक्स केस के बच्चे वो ठीक हो जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं केसेस मिलते हैं जो छोटे में शुरू हुआ और लाइफ लॉन्ग आगे चलता ही रहता है। राइट। तो बच्चों में क्या काफी आम होता है, कई बार देखने को मिलता है कि अगर वो किसी इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं या बीमार है, उसके बाद भी उनकी बॉडी पे आर्टिकेरियल रैशेस देखने को मिलते हैं। एक्चुअली क्या ना, बच्चों में कॉमन एलर्जी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेपुलर अर्टिकेरिया या इंसेक्ट बाइट रेट, मच्छर से एलर्जी। तो बहुत हाँ। बच्चों में दिखता है कि जैसे एक भी मच्छर काट लिया उसको दाने दाने जैसे होने लगते हैं। तो ये हम्म। वाले जो अर्टिकेरिया होते हैं जिसको पेपुलर अर्टिकेरिया बोलते हैं, ये आपके विद टाइम ही ठीक होंगे। जैसे मान लो जब आप प्यूबर्टी में आते हो तब आपका जाके ठीक होगा। तो तब तक आपको जैसे फुल स्लीव्स पहन के रखना है। जैसे आप मान लो जहाँ आपका घर है वहां बहुत ज्यादा मॉस्किटोज है, तो आप जैसे नेट लगा लो। और आजकल कुछ क्रीम्स आती हैं मॉस्किटो मतलब भगाने की, जैसे ओडोमॉस क्रीम है, वो आप हम्म। बच्चों में सेफ होता है यूजली, वो आप लगा सकते हो। बच्चे को फुल पहना के रखो। तो ये चीज आपको अवॉइड, क्योंकि उसका और कोई इलाज नहीं है। तो हमारे पास जो ज्यादातर पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, वो ये पेपुलर अर्टिकेरिया लेके आते हैं और वो परेशान रहते हैं। उनको यही बताया जाता है कि इसका इलाज है मच्छर से बचाओ। अब मच्छर से बचाओ तो आप कैसे कर सकते हो? या तो आप बच्चे को फुल पहना के रखो, हम्म। शाम को बाहर नहीं भेजो और मॉस्किटो नेट पे सुलाओ और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा लो। यही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो एज के साथ ही ठीक हो सकता है, उसके पहले तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही। राहुल बत्सवाल हमारे एक व्यूअर है, उनका क्वेश्चन है, आर देयर एनी स्पेसिफिक टेस्ट और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स दैट कैन हेल्प आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ अर्टिकेरिया इन एडल्ट्स? देखिए एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि 50% इडियोपैथिक होता है। हम लोग बहुत बार लैब टेस्ट भी कराते हैं, उसके बाद भी पता नहीं चलता है। तो डेफिनेटली ब्लड टेस्ट जो है वो रूटीन ब्लड टेस्ट ही होता है। तो वो उससे हम लोग को कभी-कभी आइडिया लग जाता है। जैसे कभी-कभी पता चलता है कि लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं या बॉडीज में बिलिरुबिन लेवल बढ़ी हुई है या क्रिएटिनिन बढ़ी हुई है।
तो कॉज यदि पता होता है तो इफ यू ट्रीट द कॉज देन डेफिनेटली ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी टेस्ट के बाद भी नहीं पता चलता है, तो उसमें फिर ज्यादा इंट्रोगेशन करके फायदा नहीं होता। सिंपली आप मेडिसिन का कोर्स करो तो वो चीज ठीक हो जाएगा। राइट। हमने देखा डॉक्टर पिछले समय की बीते दिनों में 2-2.5 सालों में जब कोविड महामारी की चपेट में थी पूरी दुनिया, कई लोगों ने कंप्लेन किया कोविड पॉजिटिव जो थे उनको अर्टिकेरियल रैशेस भी हुए। तो क्या कोई कोरिलेशन है? एक्चुअली ये चीज बाद में आया था कि कोविड का एक सिम्टम्स एलर्जी भी हो सकती है। इनफैक्ट बहुत पेशेंट हमारे पास आए वैक्सीन के बाद भी उनको एलर्जी हो रही थी। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी तक कहीं मिला नहीं है। जस्ट दे वर सेइंग दैट कि कुछ पेशेंट्स में उन्हें, जैसे आप देखे होंगे कोविड में वेरिएबल सिम्टम्स थे। किसी के स्मेल जा रहे हैं, किसी का टेस्ट जा रहा है, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को बॉडी एक हो रहा है। तो ये वेरिएबल प्रेजेंटेशन था। लेकिन एक्चुअल कॉज क्यों होता है, रैशेस क्यों हो रहे थे कोविड में, ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन हम लोग ने देखे थे कि कोविड पेशेंट को एलर्जी, प्लस इनफैक्ट वैक्सीनेशन के बाद भी एलर्जी हो रहे थे। राइट। डॉक्टर, कोई डाइटरी प्रिकॉशंस या डूज एंड डोंट्स होते हैं क्या पेशेंट्स ऑफ अर्टिकेरिया के लिए? डूज एंड डोंट्स तो यही है कि यदि आपको ये बार-बार हो रहा है, तो आप कम से कम कुछ भी खाते हो नया या कोई भी दवा, तो उसको नोट डाउन करके रखो। और आज के दिन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी वो ड्राइनेस की, क्योंकि ज्यादातर सब लोग एसी में बैठते हैं और सोप भी आजकल एक से एक आ गई है फ्रेग्रेंस वाली। तो और कपड़े हो गए वो कॉटन से ज्यादा सेमी सिंथेटिक ये सब हो गए। तो वो को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कपड़े पहनो तो आप कॉटन के ही पहनो ज्यादातर। कुछ भी नया खाते हो, नया कुछ मेडिसिन खाते हो, तो उसको नोट डाउन करके रखो कि आपने कौन सी मेडिसिन लिया, ताकि आप खुद भी पता कर सको। और तीसरा चीज क्या है कि जैसे आपकी मान लीजिए फैमिली में कोई चीज की एलर्जी है ऑलरेडी आपके पेरेंट्स को, तो आप उससे भी उस चीज को आप पहले से अवॉइड करो। मान लो आपके पेरेंट्स को एग से एलर्जी है या किसी चीज से एलर्जी है, तो आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जेनेटिकली भी इनहेरिट हो ही जाती है। बहुत बार कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को भी था, हमें भी एलर्जी है, तो उससे भी आप ये चीज प्रिकॉशन है। और ड्राइनेस की वाली बात है तो आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाया करो डेली जो है। समर्स के हिसाब से भी मॉइस्चराइजेशन होती है, विंटर के हिसाब से अलग मॉइस्चराइजर होती है। तो एक सिंपल मॉइस्चराइजर लगाने से भी आपकी काफी हद तक ये हो सकती है। राइट। और डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है खास तौर पे जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया के पेशेंट्स होते हैं, मान लीजिए वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 3 महीने की इनिशियल दवाइयां उन्हें दी गई और 1-1.5 महीने में ही उनको आराम हो जाता है, तो वो दवाइयां लेना बंद कर देते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करते, उनको बताते भी नहीं है। फिर कुछ महीनों बाद फिर से उनको सिम्टम्स हो रहे हैं, साइंस दिख रहे हैं, तो वो फिर से, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन है, वो खुद से ही दवाइयां खरीद के शुरू कर देते हैं और ऐसा वो ऑन ऑफ करते रहते हैं। डॉक्टर को लूप में लेते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कि वो उन्होंने कब दवाई बंद की, कब चालू की, क्योंकि उनको लगता है कि बस रिलीफ मिल गया तो ठीक हो गया। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे। क्या ऐसे लोगों से आप कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है, कोई भी मेडिसिन आप एग्जांपल ले लो, प्रेशर की मेडिसिन, कभी भी कोई डॉक्टर नहीं बोलता आप मेडिसिन खा रहे हो, मान लो 5 mg खा रहे हो तो आप सडनली बंद करो, तो 5 से आप 2.5 और 2.5 से 1. उसी तरह एलर्जी की दवा जो होती है ना, टेपर करनी पड़ती है। मान लो आपको डॉक्टर ने लिखा 1 मंथ, फिर आपको 1 मंथ बाद आप जब जाओगे तो वो डॉक्टर फिर उसको टेपर करेगा। कोई भी डॉक्टर आप देखना कभी भी नहीं बोलेगा कि अच्छा ठीक हो गया, आप तुम कल से खाना बंद कर दो। उसको टेपर का एक वे होता है कि जैसे आप डेली खा रहे थे 2 टाइम, उसको आपने 1 बार किया, फिर 1 बार से फिर 1 दिन छोड़ के किया। क्योंकि क्या होती है ना, ये एलर्जी तो अंदर से होती है ना, उसमें क्या होता है ना, हमारा बॉडी में आईजी लेवल बढ़ जाता है। तो कोई भी चीज जब एक बार बढ़ जाता है ना, तो उसको आप एक बार में नहीं दबा सकते हो, आप उसको धीरे 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 करके मतलब समझाते हो, मतलब उसको सप्रेस करते हो। तो सेम लॉजिक है कि जब तक आप मेडिसिन को प्रॉपर वे में टेपर नहीं करोगे तो आप परेशान रहोगे, बार बार यही होगा। आप दवा खाओगे फिर छोड़ दोगे, फिर आपको फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर से आपको सेम डोज से शुरू करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली परेशानी तो आपकी हो गई ना। जहां आपकी दवा आज बंद हो जाती, वो आज आपको फिर से खानी पड़ेगी, तो लॉस तो आप पेशेंट का ही है फिर। बिल्कुल, तो सेल्फ मेडिकेट क्यों करना, डॉक्टर्स के
से ही आप सलाह लीजिए, डॉक्टर पे पूरी तरह से भरोसा कीजिए और जो प्रिस्क्रिप्शन को दे रहे हैं उसे फॉलो कीजिए। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर, क्योंकि हम लगातार एलर्जीज को लेकर बात कर रहे हैं और आजकल कई तरह के एलर्जी टेस्ट भी आने लग गए हैं। फूड से, किन किन फूड आइटम से एलर्जी है उसको लेके भी टेस्ट होते हैं। लोग इतने इन्फॉर्म्ड है कि कई बार तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, वो पहले लैब में जाते हैं, वो टेस्ट करा लेते हैं, उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाते हैं कि सी आई एम एलर्जिक टू 30 फूड आइटम्स और 50 फूड आइटम्स। और कई बार तो पॉसिबल ही नहीं होता कि आप वो 30 या 50 फूड आइटम्स को अपनी थाली में से, अपने डाइट में से ओमिट कर सके। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इस तरह के फूड टेस्ट का, या जो लोग सीधे करवा के आते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज दे आर एट द सेम टाइम एक्सपेंसिव एज वेल? एक्चुअली क्या है ना, देखिए ट्रूली स्पीकिंग इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है फूड एलर्जी टेस्ट पेशेंट करा के आते हैं, लेकिन जो वो फूड आइटम बताते हैं पेशेंट उसको बंद करके भी देखते हैं तो भी एलर्जी होती है। तो बहुत हद तक इसका कोई रोल नहीं है। ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, ठीक है हमने एलर्जी टेस्ट करा लिया, लेकिन कोई भी लिटरेचर में इसको बहुत ज्यादा फेवर नहीं किया गया या इसको सजेस्ट नहीं किया गया कि नहीं आप फूड एलर्जी टेस्ट अलग से कराओ। बहुत सारे लैब में एक्चुअली क्या ये एक एक्सपेंसिव टेस्ट है, मतलब आप मतलब लोग कराते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली आप कोई भी एक अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, दे विल नेवर राइट कि आप फूड एलर्जी टेस्ट कराओ या कुछ भी। तो इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। बिल्कुल। तो अगेन पहले डॉक्टर के पास जाइए, अगर कुछ टेस्ट कराने होंगे तो वो डॉक्टर को पता होगा, वो आपको सजेस्ट करेंगे, तभी वो टेस्ट करवाइए। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर, एक हमारी व्यूअर है शिल्पी यादव, उनका सवाल है कि क्या कोई साइड इफेक्ट्स या रिस्क एसोसिएटेड है अर्टिकेरिया के जो मेडिसिन होते हैं, खास तौर पे बच्चों में अगर अर्टिकेरिया हो और जो मेडिकेशन दिया जाता है, क्या कोई साइड इफेक्ट या रिस्क एसोसिएटेड है उनसे? क्वेश्चन फिर से आप एक बार बोलना ना, मैं समझा नहीं। जी, जो मेडिकेशन है, जो दवाइयां दी जाती है खास तौर पे बच्चों को अर्टिकेरिया मैनेज करने के लिए, उनके क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कोई रिस्क हो सकता है उनका लंबे वक्त तक, खास तौर पे अगर वो दवाइयां लेनी हो? ये बहुत पेशेंट का कंसर्न होता है कि मैं 3 महीने से दवा खा रहा हूँ, 6 महीने का। एक्चुअली हम लोग ने बोथ वे ब्लड टेस्ट भी करके देखते हैं, मतलब पेशेंट 1 महीना 2 महीने। यूजुअली क्या होता है कि जो जितने भी आज के डे में मेडिसिन अवेलेबल है, अभी तो एक से एक मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन मेडिसिन भी आ गई है, तो वो बहुत रिलेटिवली सेफ होती है। तो और बच्चों में भी जो जो पीडियाट्रिक्स के कुछ अलग एलर्जी मतलब एंटी एलर्जी मेडिसिन होती हैं, बड़ों के एंटी एलर्जी मेडिसिन समहाउ थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो यूजुअली सेफ होता है। और 6 मंथ तक यदि मान लो खाना भी पड़ता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप फॉर सेटिस्फेक्शन आप ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हो, लेकिन यूजुअली वी डोंट गेट एनी केसेस ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। राइट। डॉक्टर, अर्टिकेरिया क्या कंटेजियस हो सकता है? क्योंकि आमतौर पे हमें लगता है स्किल से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो एक दूसरे से हमें हो सकता है। ये नॉन कंटेजियस, ये नहीं है, कंटेजियस नहीं होता है। ओके। और डॉक्टर, ये पूरे सेशन को हम सम अप करें उससे पहले क्या टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगे? वो कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? टेक होम मैसेज यही है कि एक तो यदि आपको एलर्जी रिकरेंट हो रहा है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो भी एक प्रॉपर डॉक्टर से। क्योंकि क्या होगा, जब तक आपका प्रॉपर वर्कअप नहीं होगा या आपका प्रॉपर वे में मेडिसिन का आपका नहीं प्लान होगा, तो आप हमेशा इससे परेशान रहोगे और चीजें जितनी पुरानी होती जाती है वो और बढ़ती जाती है। तो बेटर होता है कि यदि आप मान लो शुरुआत में ही एक प्रॉपर जगह जाके अपना ट्रीटमेंट करा लो, हो सकता है आप उससे फिर लाइफ लॉन्ग आप इससे आराम से रह सकते हो। दूसरी चीजें क्या होती है कि कोई भी किसी के कहे सुने पे बात पे नहीं जाना चाहिए कि ये दवा खा लो, ये कर लगा लो, वो कर लो या ये टेस्ट करा लो। इससे आप अपना पैसा बर्बाद करते हो, समय बर्बाद करते हो और कहीं ना कहीं आप रिस्क लेने का काम करते हो। तो बेटर है कि आप जब भी हो आप एक प्रॉपर कोई भी स्किन डॉक्टर से कंसल्ट करो और उनसे सारा टेस्ट कराओ। मेडिसिन जो जैसे वो बताते हैं, मेडिसिन भी अपने मन से बंद मत करो, जैसे वो बताते हैं उस हिसाब से मेडिसिन बंद करो, तो वो ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि अगर ये साइंस है, अर्टिकेरिया है हमें, तो हम सबसे पहले क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन पे भरोसा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल, सबसे पहले तो अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन हमें देने के लिए, इतनी जरूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन आज आपने दी है, आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं
उनको अगर या उनके आसपास किसी को अगर अर्टिकेरिया अब होगा तो उनको अब इतना तो पता है कि क्या अर्टिकेरिया है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी सेल्फ मेडिकेशन या होम रेमेडी बिल्कुल नहीं करना है और दिखाना है क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को। इट वाज वंडरफुल हियरिंग यू, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। और व्यूअर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया for your active participation in today's session, and to get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our FB page all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter and Instagram. Thank you. Have a great day ahead. Goodbye.